آج ویو 360 میں پاکستان کے کئی علاقے کرونا وائرس کے باعث بند، سمارٹ لاک ڈاؤن کتنا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ کرونا کے باعث معاشی بدحالی سے سیاہ فام اور ہسپانوی اقلیتیں سب سے زیادہ متاثر۔ I'm in a place where many people think is not real, but it is. اور آپ کی ملاقات کرائیں گے فلسطینی اسرائیلی سوشل میڈیا سٹار ناس ڈیلی سے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ پاکستان کے 20 سے زیادہ شہروں کے مختلف علاقے اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہیں، جسے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگ حکومت کی جانب سے اس اقدام سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری جانب اس صورتحال میں ان لوگوں کو ان کے علاقوں تک محدود رکھنا بھی پولیس اور انتظامیہ کے لیے آسان کام نہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔ صوبہ پنجاب میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث عالمی ادارہ صحت نے حکومت پنجاب کو حالات کی سنگینی بارے متنبع کیا تو لاہور سمیت صوبے کے دیگر شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا، لیکن بند کیے گئے علاقوں کے مکین حکومت کے لاہے عمل پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ عبدالکریم روڈ پہ کرونا آنا تھا، یہ ساتھ یہ دیکھیں منٹمی روڈ مارکیٹ ہے، بے شمار ادھر رش ہے، سامنے گوال منڈی چلے جائیں، نہ کسی کو آنے دے رہے ہیں نہ جانے دے رہے ہیں۔ میں نے قبرستان جانا تھا تو یہ نہیں جانے دے رہے۔ کورونا آیا نہ کچھ آیا نہ کوئی یہاں مرا ابھی تک، جو انہوں نے یقین مانے کہ انہوں نے سب محلے والوں کو تنگ کر رکھا ہے۔ اچھا کسی کو کام پہ نہیں جانے دے رہے، غریبوں کے بچے بھوک سے مر جائیں گے، اس سے نہیں مریں گے۔ آنے جانے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، اب باہر جانا ہے، ہمارے علاقے میں تو ابھی اتنا نہیں ہے، 1-2 موت ہوئی ہیں۔ رکاوٹیں لگا کر بند کیے گئے علاقوں میں تعینات پولیس اہلکاروں کے لیے بھی فرائض سر انجام دینا آسان نہیں۔ شہری ان علاقوں میں پولیس سے بحث کرتے نظر آتے ہیں۔ پولیس کے مطابق رہائشیوں کو مجبوری بتا کر اور شناختی کارڈ دکھا کر علاقے سے باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جو ملازمین ہیں انہیں ہم کو ریلیف دے سکتے ہیں کہ جو صبح جاتا ہے شام کو اس نے واپس آنا ہے، مگر یہ ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ پوری فیملی کے ساتھ ہر 2 منٹ کے بعد آئیں کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے پھر واپس آنا ہے۔ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بس ایسے کھڑے رہیں گے، انہیں کہتے ہیں کہ دوسرا راستہ یوز کر لیں۔ یہ ڈیلی ایسے ہی کرتے ہیں، ہر 2 منٹ بعد اندر جاتے ہیں، پھر 2 منٹ بعد ہم نے باہر آنا ہے۔ حکومت پنجاب کے مطابق صوبہ بھر میں کرونا سے متعلق قواعد و ضوابط پر ہر صورت عمل کرایا جائے گا۔ ہم تو خاموش ہیں، یعنی اگر نہ بند کریں تو تب ہم سے ناراض ساری دنیا، اگر بند کر دیں تو تب بھی ناراض، لیکن اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ زبردستی ہمیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر نہیں سمجھیں گے پیار سے اور اصرار سے نہیں سمجھیں گے تو پھر کچھ سختی تو کرنی پڑے گی۔ فار دا نیکسٹ 15 days انشاءاللہ۔ اس وقت جو SOP وہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے اٹس ویری افیکٹو ان لاہور اینڈ باقی بھی شہروں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جو علاقے ہیں ہاٹ اسپاٹس کے ان میں کیا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق موجودہ لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس کے نئے مریضوں میں کمی آئی تو اس سے صوبہ بھر کے ہسپتالوں پر بھی دباؤ کم ہوگا۔ یہ وبا کب ختم ہوگی کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ اگر شہریوں نے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کیا تو مستقبل میں اس سے بھی سخت لاہ عمل اپنایا جائے گا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ امریکہ میں 6 ہفتوں سے زیادہ عرصے تک کرونا کے کیسز میں کمی کے بعد اب گزشتہ 1 ہفتے سے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ نیو یارک اور نیو جرسی جیسے وبا کے پرانے مراکز میں مریض کم ہو رہے ہیں، لیکن کیلیفورنیا، ٹیکساس اور فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں یومیہ نئے کیسز ریکارڈ تعداد میں رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ٹیکساس میں بڑی تعداد میں کیسز سامنے آنے کے بعد ریاست کے گورنر نے کاروباروں کو کھولنے کا کام روک دیا ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یا CDC کے مطابق اب تک امریکہ میں کووڈ کے 23 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 1,21,000 ہلاکتیں اور تقریباً 7.5 لاکھ افراد اس سے صحتیاب ہو چکے ہیں۔ امریکی ادارے بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق اس وقت ملک میں بے روزگاری کی شرح 13% سے زیادہ ہے۔ اگرچہ مجموعی طور پر گزشتہ چند ہفتوں سے ملک میں بے روزگاری الاؤنس کے لیے دی جانے والی درخواستوں میں بھی کمی آئی ہے اور کئی ریاستوں میں کاروبار بھی کھل رہے ہیں، لیکن پھر بھی بے روزگاری ریکارڈ سطح پر ہے، جس کے باعث سب سے زیادہ افریقن امریکن اور ہسپانوی نژاد کمیونٹیز متاثر ہوئی ہیں۔ آج کے شروع میں گیری کونل نے خطرہ مول لیا جب انہوں نے ریاست میری لینڈ کی مونٹگومری کاؤنٹی میں ایک ہیئر سیلون قائم کیا۔ ان کا کام چلنا شروع ہوا ہی تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے کاروبار بند کرنے کی ہدایات آ گئیں۔ اب جون کے اوائل میں بندش میں نرمی کی گئی تو انہوں نے سیلون کو دوبارہ کھولا، مگر گیری کی مشکلات کم نہیں ہوئیں۔ 2.5 months I'm back
2.5 माह से मैं किराया अदा नहीं कर सका, फोन के बिल नहीं दे सका, सब कुछ उलट पलट गया है। कोरोना वायरस की वबा ने अक़लियती आबादी को ज्यादा मुतासिर किया है। सियाह फार्म और हस्पानवी नजाद अमरीकियों में बेरोजगारी की शरह ज्यादा है और सफेद फार्मों में कदरे कम है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक सियाह फार्म अमरीकियों के कारोबारों को खुसूसन नुकसान पहुंचा है, जो 41% है। Right now, you have this particular इस वक्त कोविड के हालात के बायस सियाह फार्म अमरीकी कम्युनिटीज मुआशी तौर पर बुरी तरह मुतासर हो रही हैं, क्योंकि इन्हें तो पहले ही मुश्किलात का सामना था। एक ऐसे इलाके में कारोबार चलाना जो दूसरों के मुकाबले में पसमानदा हो, वहाँ मुआशी मुश्किलात के वक्त कारोबार के नाकाम होने का इम्कान ज्यादा है। when there are economic downturns. मारीन कहते हैं कि वबा से नस्ली अदम मुसावात खुलकर सामने आ गई है। African American businesses come to the pandemic. अफ्रीकन अमेरिकन कारोबार छोटे पैमाने पर हैं। इनमें सरमायाकारी काफ़ी कम होती है, पैसों की बचत कम होती है, इसलिए इन्हें मुश्किलात का सामना करने में बहुत दिक्कत होती है। Cash and money. अमेरिका के सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में हस्पानवी निजाद आबादी में बेरोजगारी 18% के करीब है, जो किसी भी नस्ली ग्रोह में सबसे ज्यादा है। मार्च के आखिर से लेकर मेरी कोई आमदन नहीं है और मैं तो बस गुजारा कर रही हूँ। अब जबकि कई रियासतों ने कारोबार खोलने शुरू कर दिए हैं, पायरीन कहते हैं कि मईशत की जल्द बहाली की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये वसी पैमाने पर फैला एक समाजी मसला है और मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे बेरोजगारी की नाकाबिल तसव्वुर शरह से मुतल्लिक़ आदाद सामने आएंगे, मुंतखब हुक्काम को इमदाद के लिए कानून साजी का एक और मरहला तय करना होगा। मगर फिलहाल गैरी कॉनल के बकौल उन्हें ये सब बर्दाश्त करना है। एक छोटे कारोबार के मालिक की हैसियत से आपको सब्र करना और भरोसा रखना चाहिए। जूली तबो के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी है और आइंदा हफ्ते दुनिया भर में केसेस की तादाद 93 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। WHO के मुताबिक ये एक याद दहानी है कि वैक्सीन की तैयारी के साथ साथ हमें वायरस का फैलाव रोकने और जिंदगियां बचाने की जिम्मेदारी भी निभाना होगी। बज़ाहिर बड़ी हद तक कोरोना वबा पर काबू पा लेने वाले ममालिक में कोरोना वायरस के नए केसेस में इजाफा लॉकडाउन में नरमी पर बहस के दौरान नए खदशात का सबब बन रहा है। साइंसदान ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये वायरस दूसरे मुल्कों से आने वाले मुसाफरों के जरिए फैला या इसके फैलाव का जरिया मर्ज की अलामात ना रखने वाले वायरस से मुतासरा लोग हैं। चीन में अमराज पर काबू पाने के इदारे के सरबराह का दावा है कि वो हस्पताल जहां से हाल ही में कोरोना के नए केसेस सामने आए, वहां बहुत पहले से वायरस की अलामात ना रखने वाले केसेस मौजूद थे। चीन का कहना है कि गुज़िश्ता जुमे को मुल्क भर से रिपोर्ट होने वाले 32 केसेस में से 25 बीजिंग से सामने आए, जिनमें से 4 ऐसे चीनी शहरी हैं जो बैरून मुल्क से लौटे थे। चीन के डॉक्टरों की तरफ से इस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है कि क्या बीजिंग में फैलने वाले कोविड-19 का DNA यूरोपीय किस्म का है। वो जानते हैं कि बीजिंग में इस वायरस की जीनियाती खुसूसियात इस बार कुछ महीने पहले बीजिंग में पाए जाने वाले वायरस से मुख्तलिफ हैं, जिसका ताल्लुक इस जानदार में वाक़ होने वाली मुमकिना तब्दीली से है। चीन के अहदेदारों का कहना है कि फैलाव को रोकने के इक़दामात ने इस वबा के बढ़ने की रफ्तार को कम कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक जून के अवाइल से ही 200 से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके थे। यूरोप में जर्मनी में भी केसेस में इजाफा हुआ है, जब से गोश्त पैक करने वाले एक प्लांट में 1500 से ज़्यादा अफराद का नए कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया। जर्मनी में अब जून के आखिर तक लॉकडाउन की नई पाबंदियां आयद की जा रही हैं और जर्मनी के रेड क्रॉस वर्कर्स हैजमेट सूट्स में घर घर जाकर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर रहे हैं। सख्त जांच से हमें सूरत हाल की एक बेहतर तस्वीर मिलेगी। उधर लंदन में अपने वालिदैन से मुलाकात करके लौटने वाली 2 खवातीन के कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने के बाद न्यूजीलैंड में अहदेदारों ने ये मायूस कुन खबर दी कि मुल्क में कोरोना वायरस की वबा खत्म नहीं हुई। ये तमाम ममालिक के लिए चैलेंज है और मेरे ख्याल में दूसरे ममालिक समेत जनूबी कोरिया की मिसाल से जाहिर होता है कि बहुत कम केसेस रह जाने के बाद भी सेहत आमा की निगरानी का एक बहुत मजबूत और काबिल निज़ाम होना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे में जब भारत और ब्राज़ील केसेस में इजाफे का सामना कर रहे हैं, इस हफ्ते दुनिया भर में इन्फेक्शंस 90 लाख से तजावुज़ कर गए और अमरीका समेत वबा से मुतासरा कई दूसरे ममालिक से केसेस में इजाफे की इतलात आ रही हैं।
मरियामा डियालो के साथ सबा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका और चीन के चोटी के सिफारतकारों के दरमियान 17 जून को होने वाली मुलाकात इतनी मामूली नौयत की रही कि इसकी कोई तस्वीर भी जारी नहीं की गई। सिफारती ज़राए का ये कहना है कि चीन ने खुद इस मुलाकात की दरख्वास्त की थी। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पर हुई है जब दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मामलात पर कशीदगी शिद्दत पर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की चीन पर तनकीद सिर्फ कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी से निमटने तक महदूद नहीं है। चीन की हुकूमत की जानिब से हांगकांग के खिलाफ कार्रवाई उन ताज़ा इक़दामात के सिलसिले में एक है जो इस शहर की देरीना और फ़ख्री हैसियत को ख़त्म कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ और चीन के वज़ीर ख़ारिजा यांग जियाचू के दरमियान हवाई में 17 जून को होने वाली मुलाकात में बात कोई ज़्यादा आगे नहीं चली। ताहम चीन ने बातचीत को मस्बत करार दिया था। अमेरिका का कहना है कि चीन टस से मस नहीं हुआ और वो ये इंतज़ार कर रहा है कि बकौल उसके चीन के जारहाना रवैये में कुछ कमी हो। मुलाकात के 2 रोज़ बाद माइक पॉम्पेओ ने कोपनहेगन डेमोक्रेसी समिट को चीन के इरादों के बारे में खबरदार किया। वो हमारी हुकूमतों को कमज़ोर करने के लिए गलत मालूमात और अनाज से भरी साइबर मुहिम चला रहा है ताकि अमेरिका और यूरोप के दरमियान खलीज पैदा कर सके, और वो तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों और मोहताजी का बोझ डाल रहा है। हमें मुआशी ताल्लुकात के सुनहरी पर्दे को हटाकर ये देखना होगा कि चीन का चैलेंज सिर्फ हमारे दरवाजे तक ही आन नहीं पहुँचा, बल्कि ये हर दारुल हुकूमत, हर जगह और हर सूबे में मौजूद है। चीन की सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली किसी भी फर्म की हर सरमायाकारी को शक की निगाह से देखना होगा। चीन पॉम्पेओ पर यह इल्ज़ाम आयद करता है कि वो चीन और दीगर ममालिक के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने वीडियो खिताब में पॉम्पेओ ने एक बार फिर चीन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं और चीन और दीगर ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की है। चीन इसकी भरपूर मुखालफत करता है। अमरीकी सियासतदानों के चीन से मुताल्लिक बयानात बुनियादी हकाइक के मुनाफी हैं। इससे और तो कुछ नहीं सिवाय इसकी सर्द जंग वाली गहरी सोच और नजरियाती तासुब मजीद मुनकशफ होता है। तज्जियाकार कहते हैं कि जनूबी बहेरा चीन से लेकर भारत से मुत्तसिल सरहद पर चीन अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा कर रहा है और ये अमेरिका के लिए एक संजीदा चैलेंज है। ऐसे मकामात हैं ताइवान से लेकर बहुत सी दीगर जगहों पर जहां एक मजबूत होता चीन अपनी ताकत दिखाना चाहता है और हमें इसको पीछे धकेलने के लिए होशियारी से रास्ते तलाश करना होंगे। ताहम मुझे लगता है कि ये एक तरह से बॉक्सिंग की बजाय जूडो और कुश्ती जैसा है और शायद ज़्यादातर तलवारबाजी की तरह। दूसरे लफ्ज़ों में इसे पीछे धकेलना है, किसी मुतशद्दिद तसादुम में नहीं उलझना। पॉम्पेओ कहते हैं कि कौमों को किसी एक का इंतखाब करना है। मैं जानता हूं कि यूरोप में ये अंदेशा पाया जाता है कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि अमेरिका और चीन के दरमियान किसी एक का इंतखाब किया जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है जो किसी ऐसे एक इंतखाब पर मजबूर कर रही है। ये इंतखाब अमेरिका के लिए नहीं बल्कि आज़ादी और जबरो इस्तिबदाद के दरमियान किसी एक का है। इसी दौरान चीन और भारत के दरमियान सरहदी तसादुम के बाद जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हुए, मुबैना तौर पर यह तय पाया है कि मजीद लड़ाई से गुरेज किया जाएगा। स्टीव रेडिश के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। सदर ट्रंप के ब्लैक लिस्टेड चीनी मैन्युफैक्चरर्स से लिए गए टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क के बुनियादी ढांचे पर पाबंदी आयद करने के बाद दर्जनों अमरीकी कंपनियां जो अमरीका के दही इलाकों में सर्विसेज देती थीं, उन्हें हुवावे और ZTE की जानिब से दिए गए आलात का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद करना होगा। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 18 सालों से जिम केल अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के देही इलाकों में टेली मवासलात के शोबे में काम कर रहे हैं। इस वक्त वो एक मकामी कंपनी के CEO हैं और इस कारोबार को खूब समझते हैं। यहाँ पर बहुत सा कारोबार ताल्लुकात और एतमाद की बुनियाद पर होता है। तो अगर आप बाहर से यहाँ आते हैं, चीन तो बहुत दूर की बात है। अगर आप शहर से भी आते हैं तो अमरीका के देहाती इलाकों में घुलना मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब जिम से हुवावे की तरफ से 2013 में राब्ता किया गया तो वो बहुत हिचकिचाए। मयार और काबिले एतमाद होने के खदशात के अलावा जिम कंपनी के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे। लेकिन चीनी कंपनी ने जिम को जिस तरह की ऑफर की वो उसको ठुकरा न सके और इससे जिम को लाखों डॉलर की बचत होती। लेकिन इसके बावजूद जिम एक चीनी कंपनी के साथ कारोबार करने में अभी भी पुरएतमाद नहीं थे। उस वक्त सिक्योरिटी के बारे में कुछ सवालात या खदशात मौजूद थे। जब हमने इस पर गौर किया तब हमें पता चलता गया, लेकिन जो कुछ हमने चेक किया उसकी बुनियाद पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई खतरा है या कुछ गलत है। इसलिए हमने फैसला किया।
जिम की कंपनी ने 2014 में हार्ड वायर पर काम करना शुरू किया। वो हुआवे के मयार और सर्विस से मुतमईन है, लेकिन सिक्योरिटी के मामलात पर खदशात कभी कम नहीं हुए। चीन के बड़े कारोबारी इदारों पर क्रैकडाउन के सिलसिले में सदर ट्रंप ने रिप एंड रिप्लेस को एक कानून बना दिया है, जिसके बाद हुआवे जैसी चीनी कंपनियों पर सरकारी रियायत की वजह से अमेरिका में कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी जानिब हुआवे ने इन इल्जामात की तरदीद की है और कहा है कि इस हवाले से कोई सबूत नहीं है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि चीन के सियासी निज़ाम के तहत चलाई जाने वाली कंपनियों के साथ कारोबार करते वक्त ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। It's very hard to find evidence. That's the problem with subtle sabotage. सबूत मिलना बहुत मुश्किल है, खुसूसन सॉफ्टवेयर के जरिए की गई बड़ी तखरीबकारी का यही मसला है। और जब कोड्स में बहुत से बग्स या मसाइल हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से असल में बग्स हैं और कौन से बग्स के पीछे तखरीबकार छुपे हैं। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन की दरख्वास्त पर जिम ने गुज़िश्ता मई में एक रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें हुआवे के आलात को तब्दील करने के तखमीने और लागत के बारे में बताया गया था। इसमें 1 साल का अरसा और $6 लाख लगेंगे और 2000 घरानों में फाइबर केबल की तैनाती में भी ताख़ीर होगी। लेकिन जिम का कहना है कि कौमी सलामती की खातिर वो इस पर सख्ती से अमल दरामद करेंगे। हम यकीनी तौर पर अपने नेटवर्क को या नेटवर्क की हिफाजत को खतरे में नहीं डालेंगे। कौमी सलामती के नुक्ते नज़र से हम सिर्फ पैसा बनाने के लिए यकीनी तौर पर इसको खतरे में डालने वाले नहीं हैं। नुकसानात को कम करने के लिए वफाकी हुकूमत ने प्रोग्राम की अदायगी के लिए $1 अरब की मंजूरी दी है, जबकि FCC ने अंदाज़ा लगाया है कि लागत $2 अरब से ज़्यादा है, जिसके लिए उन्हें कांग्रेस से मज़ीद मदद चाहिए। देही इलाकों में काम करने वाली टेलीकॉम कंपनियां इस हवाले से जल्द जवाब की तवक्को कर रही हैं। हुआवे ने जिम की कंपनी को तकनीकी मदद और पार्ट्स की फराहमी बंद कर दी है, जिसका मतलब ये है कि तौसी तो दूर की बात, अब उन्हें किसी भी तकनीकी मसले का हल भी खुद ही ढूंढना होगा। जिम का कहना है कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि सूरत हाल इतनी परेशान कुन हो जाएगी। हुआवे के साथ किया गया मुआहदा बेहतरीन सौदा था, लेकिन अब इस सौदे की असल कीमत का अंदाज़ा हो रहा है। मुस्तकबिल में वो शायद ही मुश्किल से किसी चीनी कंपनी के साथ कारोबार करेंगे। हम यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल में नहीं फंसना चाहते जहां हम अपने आलात नस्ब करें, उस पर वक्त, मेहनत और पैसा लगाएं और बाद में उन्हें उखाड़ना पड़े। KLIU के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। facebook.com/urduvoa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में नस्ली इम्तियाज़ और समाजी नाइंसाफ़ियों के खिलाफ कई हफ्तों तक जारी रहने वाले मुजाहिरों में इस्तेमाल होने वाले साइन बोर्ड्स और पोस्टर्स में अब तारीख़ दान भी दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ के मकामी अजायब घर और कई दीगर इदारे मिलकर अब इस सारे मवाद को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिनेसोटा में पुलिस की हिरासत में स्याहफाम अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद कई रोज तक मुजाहिरे जारी रहे। मुजाहिरीन ने अपने जज्बात के इजहार के लिए व्हाइट हाउस के करीब बनाई गई आर्जी बाड़ पर सैकड़ों पोस्टर्स चिस्पा किए। बाज़ औक़ात दर्द और जद्दोजहद बेहतरीन आर्ट को जन्म देने का सबब बनते हैं। लोगों ने अपने ख्यालात, जज्बात और इस मौके को कागज के इन छोटे छोटे टुकड़ों पर उतारा है। जैसे ही पता चला कि ये बाढ़ गिराई जा रही है, रजाकार और दीगर अफराद वहाँ मौजूद फन के नमूनों को महफूज करने यहाँ जमा हो गए। जब हम यहाँ आए तो ये देखकर हैरान हुए कि यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं था जैसा टेलीविजन पर नजर आ रहा था, लेकिन जब जरा आगे गई तो देखा कि सब साइंस मौजूद थे और महफूज कर लिए गए थे। हमने शुक्र अदा किया कि हमें उन्हें देखने का मौका मिला। वॉशिंगटन में स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री एंड कल्चर ने इन्हें जमा करने के लिए फौरी तौर पर एक टीम बनाई। म्यूजियम के निगरान एरन ब्रियांट के मुताबिक इसका मकसद जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत और पुलिस की बर्बरियत के दूसरे मुबैना वाक़यात पर यहाँ और दीगर मुल्कों में होने वाले मुजाहिरों का रिकॉर्ड मुरतब करना था। इन फनपारों के पीछे वो हकीकी आवाजें, तजुर्बात और इंसानियत है जिससे हम सब खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। म्यूजियम को उम्मीद है कि वो इस मौके को नस्ली इम्तियाज से मुताल्लिक दयानतदाराना मुबाहसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तब्दीली के इस वक्त में हमारी कौम के लिए जिस चीज की जरूरत है वो हकीकत के बारे में दयानतदाराना गुफ्तगू का मुतालबा है। इज्तिमाई इंसानियत की तरक्की का ये वाहिद रास्ता है। मेरी ख्वाहिश है कि ये सब नमूने एक रोज म्यूजियम के एक मुकम्मल सेक्शन में बदल जाएं।
تاریخ کی یادگار کے طور پر وقت کی حقیقی علامتیں. جولی ٹیبو کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ. 2.5 کروڑ فالوورز رکھنے والے معروف فلسطینی اسرائیلی سوشل میڈیا سٹار ناز ڈیلی کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں عرب ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ امریکہ میں سیاہ فام امریکی ہونا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اپنی قسمت بدلنا ہماری ذمہ داری ہے. فائزہ بخاری سے انہوں نے بذریعہ اسکائپ گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں. You describe yourself as a Palestinian Israeli. آپ خود کو فلسطینی اسرائیلی کہتے ہیں. فلسطین میں عرب پیدا ہونے سے اسرائیل میں عرب پیدا ہونا کتنا مشکل یا مختلف ہے؟ ہاں، گڈ کوسچن. آئی تھنک اچھا سوال. اس کی ملتی جلتی مثال کچھ یوں ہوگی جیسے امریکہ میں سیاہ فام یا قدیمی امریکی ہونا. سسٹم میں مشکلات کا سامنا آپ ہر جگہ کرتے ہیں اور اسرائیلی عرب افراد کے لیے بھی ایسا ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی قسمت کو بدل کر بہتر کرنا. لیکن میں اگر مشرق وسطیٰ میں رہنے کے لیے کسی ملک کا انتخاب کروں گا تو وہ اسرائیل ہی ہوگا. میں اسرائیل مخالف نہیں لیکن حامی بھی نہیں ہوں، بس اپنی جائے پیدائش کو بہتر ملک دیکھنا چاہتا ہوں. I just want my birthplace country to be better. دنیا آپ کو ناز ڈیلی کے نام سے جانتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ناز ڈیلی ہے کون؟ نام، شہریت، قومیت وغیرہ؟ My real name is actually Nosair. میرا حقیقی نام نصیر یاسین ہے اور ناس عربی میں لوگوں کو کہتے ہیں، اس لیے میں نے چینل کا نام ناس ڈیلی رکھا. اسرائیل میں پیدائش ہوئی اور وہیں پلا بڑھا. پھر امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے کچھ عرصہ بطور سافٹ ویئر انجینئر کام کیا، لیکن پھر میں آفس میں کام سے اکتا گیا اور فیصلہ کیا کہ دنیا بھر کی سیر کروں اور ویڈیوز بناؤں. تو ویڈیو بلاگنگ شروع کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی یا یہ محض اتفاق تھا؟ I think it was more accidental. I think video is means to an end. میرے خیال میں یہ حادثاتی تھا. میرے لیے ویڈیو ایک مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. مجھے اپنی ویڈیوز کی ٹیکنالوجی سے زیادہ مواد میں دلچسپی ہے. پیغام پہنچانے کے لیے آپ کاغذ پر لکھیں، کبوتر، انٹرنیٹ یا اخبار کا استعمال کریں، لیکن ویڈیو سب سے پر اثر طریقہ ہے، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا. کورونا شٹ ڈاؤن نے آپ کی زندگی اور کام کی روٹین کو کیسے متاثر کیا؟ For some people, Corona is the best thing to happen because it's a wake-up call. کورونا کچھ لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے کی وجہ بنا. ویسے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے کام، کمپنی اور مصنوعات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. میں بھی یہی کر رہا ہوں. کاروباروں کے محدود ہونے کے باوجود انٹرنیٹ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اس کا احساس ہم سب کو کورونا شٹ ڈاؤن کے دوران ہوا. اس کے ساتھ ہی اچھے مواد کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوا. یہ شاید آپ کے میڈیا کے لیے بھی اچھا ثابت ہوا اور میرے لیے بھی. So most of the youngsters these days they want to be social media stars just like you. آج کل اکثر نوجوان آپ ہی کی طرح سوشل میڈیا سٹارز بننا چاہتے ہیں. کیا مشورہ دیں گے آپ ان سب کو؟ اور کمانے کے لیے کون سا ڈیجیٹل پلیٹ فارم زیادہ اچھا ہے؟ My advice is, don't do it for the money or the fame. اس کام کو پیسے یا شہرت کے لیے مت کریں، تخلیقی کام کے طور پر کریں. اور اگر آپ تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں تو دیر مت کیجیے، گزرے ہوئے کل سے ہی یہ کام شروع کر دیجیے. بہترین پلیٹ فارم کی بات کی جائے تو اس کا انحصار ویڈیوز پر ہوتا ہے. لمبی ویڈیوز کے لیے یوٹیوب استعمال کریں، چھوٹی ویڈیوز کے لیے فیس بک بہتر ہے. آپ کو ڈانس کرنا ہے تو ٹک ٹاک پر جائیں. اپنے مواد کے مطابق پلیٹ فارم کا فیصلہ کریں. میرے لیے فیس بک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوا. آپ کے بہت سے فالوورز پاکستان سے ہیں، کیا پیغام دیں گے آپ ان کے لیے؟ I wish I could enter. کاش میں پاکستان میں داخل ہو سکتا، لیکن اسرائیلی پاسپورٹ پر مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں میرا داخلہ غیر قانونی ہے، لیکن میں اس کا حل نکالنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سے لوگ میری ویڈیوز فالو کرتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں سے حقیقت میں ملنا چاہوں گا. اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں facebook.com/urduvoa کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے.